आजकल मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा सेवा की जो ज़रूरत है वो लोगों को वार्मथ, प्यार और इमोशनल शक्ति की ज़रूरत है। पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप कर्म पे फोकस कीजिए, क्या बनना है उस पर फोकस मत करो, क्या करना है उस पर फोकस करो। बस बेटा तो आ गया, अब मैं शांति से मर सकती हूँ। तो मैंने बोला बा ऐसा क्यों बोलते हो? तो तब मुझे पता चला कि उनका बेटा दिन में एक ही बार खाना देता था, बूढ़ी माँ को कभी कभी पी के मारता था, उनसे ही घर में झाड़ू पोछा करवाते थे, एंड द वर्स्ट थिंग वाज रात को उनको गुटखा खिलाते थे। Even in the government schools from Kashmir to Kanyakumari, the largest plastic garbage we find is गुटखा wrappers। कि इन बच्चों को जो डिजर्विंग है, रेजिलियंट है, स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ के इतना रिजल्ट लाए हैं, अब ये आगे पढ़ने चाहिए। कई बच्चे हमारे IITs, एम्स में से ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुके हैं, गोल्डमैन सैक्स में जॉब करते हैं, अर्नस्ट एंड यंग में जॉब करते हैं, HDFC बैंक में जॉब करते हैं। बेनिफिशियरी सच्ची में तो हम ही हैं। When you are a giver, you are the biggest beneficiary and you learn from the children as well. So Abdul Kalam was one of my main mentors. At the right age, I met him when I just come back from India. हमको कोई बोलते कि हम कौन सी पार्टी में, तो हम बोलते हैं बच्चा पार्टी में। जो भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं हम वहाँ पे करते हैं। Namaste everyone, welcome to another episode of Better Bharat with Organizer. Today we are being joined by Amitabh Shah of Yuva Unstoppable, a not-for-profit organization that is working in creating quality learning spaces as well as helping students achieve their dreams by collaborating with a lot of stakeholders of the society. He's helping make Bharat a better place, and so we are going to be in conversation with him today. Thank you, Amitabh. Thank you for joining us. Tell our viewers a little bit about Yuva Unstoppable. So Yuva Unstoppable basically is a mission to transform government schools and improve education and health there. उनकी कायाकल्प कैसे कर सकते हैं? Inspired by Prime Minister's mission of Clean India and Digital India, we saw that a lot of places, the government schools for 300 girls, there were just 2 or 3 bathrooms. The dishwashing, drinking, hand washing area were just 2 or 3 faucets of water. Smart classroom नहीं था, they would just paint the wall black and write down with the chalk, especially villages में और सब जगह. So we kind of started transforming the facilities with the help of a lot of corporates and HNI support so that for every 40 girls there's a separate bathroom, 35 kids there's a separate faucet of water, dishwashing, drinking, hand washing को अलग किया. And जैसे हम गांधी जी लिवर किडनी का टेक्स्ट बुक में पढ़ते थे, वैसे ही उसका हमने स्मार्ट क्लासरूम लगा के ऑडियो विजुअल कर दिया. And children retain animation and audio-visual knowledge a lot better, a lot faster. And so the maths and science improved by 4% as per London School of Economics. The attendance went up by 15% in a lot of these schools where we come in and intervene. And now with God's grace, we have about 5,000 schools all over India, 25 states, in every nook and corner we have transformed. And 6 million children we are supporting. Tell us, how did you start? I'm like, I know this, but our viewers would want to know this. When you came back from abroad, you've studied a major part of your life. You've studied in America. For a person like that who comes from what you'd call a privileged background, who's been well exposed, well traveled. When you came back, what triggered this, this drive to give back to students? Sure. So, एक कहानी है, मज़ेदार कहानी है, and sometimes I feel that when we don't make plans and strategies and targets for our life, the divine can make you nimit and make much better plans in your life, much more beautiful than you can imagine. So when I was 15, tennis was my passion. So I went to the US to be a professional tennis player, and I lived with an American family who was hosting me completely free of cost for my 11th and 12th, and he was actually the tennis coach of the high school. Where you went? In a place called Alabama, in Talladega, Alabama. I had roommates from Brazil, Germany, Japan. सबको फ्री में रखते थे और मुझे ऑल ओवर एलाबामा टेनिस टूर्नामेंट्स में खेलने ले जाते थे, बेटे की तरह रखते थे, सैलड्स, चीज़ सैंडविचेस प्यार से बना के खिलाते क्योंकि मैं वेजिटेरियन था. And then I did my bachelor's there at Alabama, and I saw that a lot of people were going and volunteering at Boys and Girls Club, Big Brother, Big Sister, Soup Kitchen, Salvation Army. And my connection with Seva, which was there when I was a kid going to the shakhas, kind of revived when I went there, because there was a disconnect, and for some time you become numb to the kids that you see on the streets or under the bridge. But after going there, it revived. And so I was like, yeah, can I start something for young people in India? ये thought तब से मेरे में seed हो गया था.
Now, when I was 21, I graduated from college and was working for a company called Hewitt Associates in Atlanta. And वहाँ पे मैंने 3 बेस्ट फ्रेंड्स बनाए थे, वोडका, टकीला और मार्गरीटा. तो 50% जो मैं बना रहा था पैसा वहाँ पे जा रहा था. तो मेरे पिताजी ने बोला ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, तो बिगड़ गया है, एक काम कर तू MBA करने जा, तो तेरे को लाइफ का पर्पस पता चलेगा और तेरे को आगे पता चलेगा तेरे को क्या करना है. तो मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली दीप्ति जी MBA करने के लिए टेक्सास A&M में. तो मैं वहाँ पे जॉब छोड़ दी अटलांटा में, सोचा 1.5 महीना अहमदाबाद जाऊँगा, टेनिस खेलूँगा, दोस्तों से मिलूँगा, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, हरे कृष्णा मंदिर में जाऊँगा और फिर वापस चला जाऊँगा पढ़ने के लिए. बिल्कुल. So on the flight they were showing a movie called Swadesh, where there's a NASA scientist who comes back to India to spend time with his nanny in her village and doesn't go back and works for electricity and water there. तो पॉजिटिव और अच्छे मैसेजेस वाली मूवीज़ लोगों को ज़्यादा बनानी चाहिए क्योंकि उससे भी समाज मोटिवेट होता है. जैसा ही मैं लैंड हुआ, मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी कमला बहन कहाँ है, जो दूध का ग्लास लेके पीछे दौड़ती थी, तेल डालती थी, बचपन में नहलाती थी, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया था. तो बोला आई थिंक निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में उसके नज़दीक गोता गांव है, आई थिंक वहाँ पे रहती है. तो हम लोग सीधा एयरपोर्ट से उनको मिलने गए. आई वाज सिटिंग अंडर द ट्री आउटसाइड द विलेज, 82 years old, only weighed 27 kgs. She was just skin and bones. And the first thing she said when she saw me was, बेटा तू आ गया, अब मैं शांति से मर सकती हूँ. तो मैंने बोला बा ऐसा क्यों बोलते हो. तो तब मुझे पता चला कि उनका बेटा दिन में 1 ही बार खाना देता था, बूढ़ी माँ को कभी कभी पी के मारता था, उनसे ही घर में झाड़ू पोछा करवाते थे. एंड द वर्स्ट थिंग वॉज रात को उनको गुटखा खिलाते थे. तो जब आप चबाते रहते हो कुछ गुटखा तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल. और चौराहा पे बच्चों को दांत देखेंगे जो बुक्स बेच रहे हैं या मांग रहे हैं आपसे कुछ. It's interesting because when I was driving for this interview, when I saw these 3 little young girls near this traffic signal and they were all putting something in their mouth. So I thought maybe it's pan parag or something, but I think it could be to suppress appetite. Even in the government schools from Kashmir to Kanyakumari, the largest plastic garbage we find is gutka wrappers because they're catching them young. I was like, अरे बाप रे, अब कमला बहन को यहाँ तो नहीं छोड़ सकते. मैं तो खाली कैसे हो पूछने आया था. गाड़ी में बिठा दिया, घर पे लेके आए, 2-3 हफ्ते उनकी सेवा की, उनका 2-3 kg वेट बढ़ा. अब मैं तो अमेरिका जा रहा था, तो उनका कहाँ पे कैसे ध्यान रखें. तो मैं वृद्धाश्रम में छोड़ने गया जो SG हाईवे अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर के पीछे एक सुवर्ण मंदिर नाम का वृद्धाश्रम है. व्हेन आई केप्ट हर देयर, वहाँ पे मुझे उनके रूममेट मिले, सविता बा, वाज इन her late 70s. और मुझे बोला, मैंने बोला आप क्यों हो यहाँ पे बा. तो बोलती है कि मेरे बेटे ने बोला मैं चल तुझे ले जाती हूँ पिकनिक पे 2 दिन के लिए, मुझे यहाँ छोड़ के गया है. उस बात को 2 साल हो गए, क्या तुझे मेरे बेटे ने भेजा है. मैंने बोला नहीं, पर मैं आपके बेटे जैसा हूँ ना, मैं आपके साथ आके टाइम स्पेंड करूँगा. एंड मैंने कुछ मेरे मित्रों को बोला. पहला दिन 2-3 लोग आए, फिर 4, फिर 30, फिर 40. बाय द एंड ऑफ द वीक आने लगे. कोई बोलता है मैं अदानी में हूँ, मैं HDFC में हूँ, मैं KPMG जॉब करता हूँ, इसका भाई हूँ, इसका चाचा हूँ. So you had a good network starting. मैं खाली 5-6 लोगों को बोला, वो लोग सबको लेके आना शुरू कर दिए, तो नेटवर्क बढ़ने लगा. और तब रियलाइज हुआ कि सबको कुछ ना कुछ करना है. शायद पैसा ना हो देने का, पर समय तो सबके पास है. सो काइंड ऑफ RSS से इंस्पायर्ड होके वी स्टार्टेड दिस युवा अनस्टॉपेबल. वहाँ पे वी सेड डूइंग गुड स्कूल. जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो दोस्तों के साथ, आपको मजा आता है. मूवी देखने जाते हो, मजा आता है. जब अगर आप सेवा करने जाते हो स्कूल्स में, तो उसमें मजा आना चाहिए. सो डूइंग गुड इज कूल. Is cool, yeah. This is something that you talked to the founder of Zerodha also recently, right? Yeah. And that's a series that you've started, that how it's cool to give back. Yes. Yes, and we are seeing more so in the young people who have also made a lot of wealth in a short time. If you make it something fun and cool to do, कि हम दे रहे हैं, and not a big responsibility and a burden, कि इतना है तो देना ही पड़ेगा. नहीं, ये तो बहुत आनंद. It's joy to do this. It's so much fun to do this. Then people will give their Lakshmi as well. You think that comes from somewhere the philosophy that we all grew up with? Like the philosophy that is part of the Sanatan Dharma as such, to give back? Absolutely. I think we are luckiest people in the world to be born in India, क्योंकि यहाँ पे सत्कर्म करने के हमको बहुत मौके मिलते हैं. घर में भी लोग मिल जाएंगे, बाहर भी मिल जाएंगे, और बचपन से सबके घर में देखेंगे माता पिता कहीं अंधजन मंडल में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या ऑर्फनेज में जाके कुछ वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ हम देते हैं. मेरी दादी थी, वो साड़ियाँ बांटती रहती थी हमेशा, जो भी स्टाफ था आजू बाजू में, सिक्योरिटी गार्ड्स की वाइफ्स को, सबको.
तो ये हम देने की जो भावना है वो हमारे सनातन धर्म से ही आती है। एंड 3 चीज़ें मैं मानता हूँ। एक तो हम निमित्त, अगर हम निमित्त भाव से सारे काम करें तो दे कैन रियली स्केल अप और बहुत अच्छी हम सेवाएं कर पाएंगे कि वो कर रहा है सब कुछ। सेकंड इज निर्मल, निमित्त मींस यू आर द मीडियम, वी आर एब्सोल्युटली द मीडियम। सेकंड इज निर्मल, यानी हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए। आजकल मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा सेवा की जो ज़रूरत है वो लोगों को वार्मथ, प्यार और इमोशनल शक्ति की ज़रूरत है। एंड नमन, ह्यूमिलिटी। अगर हम हम्बल रहेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे, ज़्यादा कर पाएंगे। तो जब मैं घर पे आया और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी 40 वॉलंटियर्स हो गए, मैं यूएस नहीं जा रहा, मैं इंडिया रह रहा हूँ, सबके पास तो इसका संचालक करने का समय नहीं होगा, मैं फुल टाइम करूँगा, ये लोग सब हफ्ते में 2 घंटा देंगे क्योंकि कोई मैरिड है, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, मैं इसको कोऑर्डिनेट करूँगा, मैं नहीं जा रहा वापस। तो मम्मी बोलती है कि भाई तू 50-60 का होगा तब करना, अभी से तू ये करेगा, हमारे पैसों से ये करेगा। मैंने बोला जो भी हो पिताजी को मत बोलना। यूजुअली जब भी हमें 4th फ्लोर पर पिताजी बुलाते तो मैं और मेरा भाई शैतानी करते तो हमको पड़ती थी। अभी मैंने अब तो बड़ा हो गया, अब तो पापा चिल्लाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। तो बोला कि बोलते इट्स नॉन रिफंडेबल एयरलाइन टिकट। मैंने बोला पापा चलेगा, तेरी फुल स्कॉलरशिप है चली जाएगी। बोला पापा चलेगा। ही सेड चल वो तो ठीक है, पर जैसे शादी कौन करेगा, कोई फकीर से शादी नहीं करता। तो मैंने स्माइल करके बोला पापा शादी करके कौन खुश होता है, तो हंसने लगे। एनीवे देन ही सेड कि तेरा भाई आपका भाई है वो शायद मर्सिडीज चलाएगा, फरारी चलाएगा, रोल्स रॉयस चलाएगा, वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा है और इतना बड़ा लॉ फर्म चालू कर रहा है वो, और आप साइकिल में घूमोगे। देखो अगर गाड़ी होगी घर में वो भी चला लूँगा अच्छी वाली, और साइकिल तो यूके के प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल में घूमते, फिट रहते, फिट रहूँगा। तो टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने बोला आपको खाने पीने के घर में देंगे, बाकी कोई सपोर्ट नहीं देंगे। मैंने मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, ये शायद पिछले जन्म के भी संस्कार हो सकते हैं। एंड हमने टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई स्टेड बैक, वी मोबिलाइज 150,000 volunteers. It was 2005. 2004. So you started from assisted senior living, yes. And then how did you move to education? Because what we saw is कि जो बच्चे होते हैं schools में वो below the age of 16 दिन में 400 बार स्माइल करते हैं, तो सत्संग का रंग लग जाता है। तो people who want to be around children and they smile a lot more. तो मैं देखा कि जो youngsters थे जो कोई सोशल वर्क के बैकग्राउंड से नहीं आते थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स जो भी थे, बच्चों के साथ उनकी रुचि बैठ जाती थी, कनेक्शन हो जाता था। बच्चे इंतजार करते थे कि आप कब आओगे, और जब हम बड़े हो जाते हैं 18 से बड़ी एज है, दिन में खाली 12 बार स्माइल करते हैं। तो इट वॉज अ सिंपल रीजन ऑफ दैट द चिल्ड्रंस लव एंड वार्मथ पुट द वॉलंटियर्स देयर एंड दे वुड गो एंड टीच मैथ, साइंस, डांस, म्यूजिक, इंग्लिश, वैल्यू बेस्ड स्टोरीज। जो आप में क्षमता है वो आप बच्चों से शेयर कीजिए। पर वो परस्पर लर्निंग हो रहा था, बच्चों से लोग हाउ टू बी हैप्पी सीख रहे थे। Like when you're saying you're installing water coolers, yeah. Toilets, how did that happen? So 2 years into doing UA, I went to Yale for my MBA, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था माता पिता को। करने के बाद मैं 2008 में वापस आया। I declined a Wall Street offer with JP Morgan, जो आज से मुझे 15 साल पहले $500,000 दे रहे थे, और मैंने बोला नहीं, मुझे रियल स्टेट में सेवा करनी है। मोदी जी गुजरात के CM थे। जब मैं तुरंत वापस आया, मुझे मौका मिला अबाउट 1-1.5 महीना उनको शैडो करने का एंड सीखने का डायरेक्टली फ्रॉम हिम हाउ ही मैनेजेस ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स विद इन द गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स, द बेनिफिशियरीज, किस प्रकार से पॉलिसीज पास कर रहे हैं, एजुकेशन में एफिशिएंसी कैसे ला रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा और सीख रहे, और कैसे निरंतर अनस्टॉपेबल होकर काम कर रहे हैं। युवा का जब 1 साल पूर्ण हुआ था तब वो आए थे और उन्होंने बोला कि आप अच्छे काम करते रहोगे ना तो आप अनस्टॉपेबल ही रहोगे हमेशा। पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप कर्म पे फोकस कीजिए, क्या बनना है उस पर फोकस मत करो, क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। तो हमने वो भी फिलोसफी अभी तक चालू रखी है। एंड देन वॉलंटियर्स हमें तकरीबन 100 कंपनी से आ रहे थे। मैं मानता हूँ मैं विश्व का सबसे ब्लेस्ड और लकी इंसान हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपकी मम्मी अदानी में वाइस प्रेसिडेंट है, आप वॉलंटियर करने और आपने बोला चलो मम्मी से मिलाती हूँ, तो माता बोलेगी मैं हमारे कंपनी से 100 जन को बोलती हूँ आपको पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही नेचुरली ऑर्गेनिकली खुलते रहे। 100 कंपनीज के एम्प्लॉयज़ वॉलंटियरिंग कर रहे थे हमारे साथ, और उन्होंने स्कूल में जाके बोला अमिताभ मैथ साइंस तो ठीक है पर जो सैनिटेशन की फैसिलिटीज है उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। हम भी 2 घंटे जाते रोक के रखना पड़ता है। और तभी ये क्लीन इंडिया और डिजिटल इंडिया की बहुत बातें करना चालू कर दी पीएम ने, जिससे लोगों को ऑटोमेटिक इनबिल्ट मोटिवेशन था कि इस फील्ड में कुछ करना है।
फिर हमने IIM अहमदाबाद के साथ, कुछ के प्रोफेसर के साथ, कुछ बच्चों के साथ मिलके हमने एक ब्लूप्रिंट बनाई कि फॉर एन एक्स अमाउंट हम स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सैनिटेशन और डिजिटली, और वही ब्लूप्रिंट को हम मॉडिफाई करते रहे। और अभी कॉर्पोरेट्स ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए तकरीबन 5000 स्कूल्स में हमको सपोर्ट किया है। और ये जो शुरुआत हुई थी प्रोग्राम की, वो गौतम अदानी के पुत्र जीत अदानी, वो वॉलंटियरिंग करने स्कूल में आते थे आज से 8 साल पहले, उन्होंने इसको प्रॉपर स्वरूप दिया। Okay, like a model of how to प्रॉपर स्वरूप दिया, प्रॉपर मॉडल दिया, जिससे इम्पैक्ट क्रिएट हो पाएगी, और लोगों को जोड़ा कि आप स्कूल्स को साथ सपोर्ट कीजिए। तो किसी ने 10 स्कूल लेंगे, हम 20 लेंगे, हम 40 लेंगे, हम 50 लेंगे। तो it's interesting. You just need one person to start the process, then people are ready to join that movement. And you are at 5,000 schools right now. What about? Tell us a bit about the software that you're using for learning. How you join tech, and it's one software that you're using for all the schools. So हर एक राज्य में सरकार ने वहाँ पे ऑलरेडी ऑडियो विजुअल बनाया हुआ है उनके करिकुलम का, तो हम वही ऑडियो विजुअल यूज़ करते हैं। और फिर जो भी एडटेक कंपनीज है वो लोग भी उनका कंटेंट हमको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं स्कूल्स में यूज़ करने के लिए। कई स्कूल्स में हमने टैबलेट्स भी बच्चों को दिए ताकि उनका ऑडियो कोविड, और स्पेशली बच्चियों को, क्योंकि अगर पिताजी धोबी है या रिक्शा वाले हैं, एक स्मार्टफोन है, तो बेटी के भले 90% आ रहे हैं, पुत्र के 50% रिजल्ट आ रहा है, फिर भी वो उसको स्मार्टफोन देंगे, इनको नहीं देंगे। तो हमने तकरीबन 30,000 टैबलेट्स बच्चियों को, स्पेशली एबल्ड बच्चों को, विजुअली इम्पेयर्ड हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, उनको उस टाइम पे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस दे के दिया जिनसे उनको ब्रिज द डिजिटल डिवाइड हम कर पाए उस टाइम पे। Also, I've met some students that are studied from your schools. You also helping them get scholarships for their life ahead. How did that come about? Is that a new feature that? So जो मैंने आपको बोला वो हमारी शुरुआत थी, वॉलंटियरिंग से शुरुआत की। फिर हम स्कूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन में क्लीन वाटर, बाथरूम्स और स्मार्ट क्लासरूम में आए। फिर वहाँ से हमको इतने सारे बच्चे मिले, अनाथ बच्चे से कुछ वेजिटेबल सेल्स के बच्चे से, कुछ बच्चे से 4 घंटे बर्तन साफ करने जाते थे, पर 10th में 80 से ज़्यादा परसेंटेज आते थे। तो वी थॉट कि इन बच्चों को हमको डेफिनेटली स्कॉलरशिप देनी चाहिए। ड्रॉप आउट रेट 10th में ही होता है सबसे ज़्यादा ना। एग्जैक्टली, कि इन बच्चों को जो डिजर्विंग है, रेजिलिएंट है, स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ के इतना रिजल्ट लाए हैं, अब ये आगे पढ़ने चाहिए। तो उनको हमने JEE नीट की प्रेपरेशन में सपोर्ट किया, उनको 4 साल कॉलेज में सपोर्ट किया। कई बच्चे हमारे IITs, एम्स में से ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुके हैं, गोल्डमैन सैक्स में जॉब करते हैं, अर्नस्ट एंड यंग में जॉब करते हैं, HDFC बैंक में जॉब करते हैं, और वो दूसरी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं। दैट इज व्हाट्स मोर सेटिस्फाइंग, कि जो हमारा सनातन धर्म में है कि आपको जिसने मदद की है आप आगे मदद कीजिए। तो पेड फॉरवर्ड बहुत सुंदरता से कार्य चल रहा है। और एक लड़का था मोनित करके, क्योंकि हम बच्चों में से भी सीखते हैं। हमको कई बार लगता है कि हम ही दे रहे हैं, पर हम बेनिफिशियरी सच्ची में तो हम ही हैं। When you are a giver, you are the biggest beneficiary and you learn from the children as well. तो मोनित करके एक लड़का था, उसका घर यही 12/12 का होगा, 10th में 98% आए थे। हम उसके घर पे विजिट करने गए। उसके 2 भाई थे, 5 और 6 साल के, मारा मारी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे। माता अनियन, टमाटर, ककड़ी काट रही थी, आवाज़ हो रहा था। बड़ा भाई टीवी देख रहा था। हमने बोला इसमें फोकस कैसे कर सकता है भाई, तू कैसे आए थे 98% आए? तो उसने बोला ध्यान से देखो, मेरा प्राइवेट कमरा है। मैंने बोला कहाँ प्राइवेट कमरा है, 2 जंप मारूंगा तेरा घर खत्म हो जाता है। तो उसने एक कोने में चला गया, उसने बुक ले ली और बोला देखो मैं फोकस्ड हो गया, अब पीछे जिसको जो करना हो करे, आई एम फोकस्ड। और वो बच्चा हर हफ्ते 6 घंटे के लिए आजू बाजू में 4 बच्चों को मैथ्स एंड साइंस पढ़ाता। उसने बोला मेरे पास लक्ष्मी नहीं है अभी, पर सरस्वती की तो शक्ति है मेरे में। He was one of our first scholars. Now हमने more than 5,000 ऐसे ब्रिलियंट बच्चों को, जैसे सुपर 30 बोलते हैं, आई फील इंडिया नीड सुपर 3 मिलियन, हमने सुपर 5,000 बच्चों को, वही स्केल के, क्वालिटी के लेवल के बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिए। और उनको मेंटरशिप करने के लिए पॉलिटिक्स से, बिजनेस से, स्पोर्ट्स से बहुत सारे सेलिब्रिटी और एथलीट्स आते हैं। Tell us a bit about that. Who are the people who've joined hands? People from various fields, as you're saying. तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमारे इंटरिम इंडिया के कोच है VVS लक्ष्मण, जो क्रिकेटर हैं। उनका एजुकेशन पे बहुत स्ट्रांग फोकस था और हम उनके साथ मिलके बच्चों को IITs में हेल्प कर रहे हैं।
to become mechanical engineer or chemical engineer, electrical engineer. Or VVS regularly comes and talks to them about leadership skills, positive mindset, how to work with teams. On a regular basis, he's giving his time as well. It's not just the money. अनिल कुंबले है, जिन्होंने अलग अलग करिकुलम बनाया जाकि बच्चों को स्पोर्ट्स के थ्रू माध्यम से सिखा सके, वो भी मोटिवेट करते थे. इरफान एंड यूसुफ पठान है, उनके पिताजी आई बिलीव मस्जिद में झाड़ू लगाते थे, तो वो बैकग्राउंड और कंपैशन को समझते हैं, तो वो लोग बहुत प्रोएक्टिवली जुड़े हुए कार्य के साथ. संग्राम सिंह है जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीते हुए थे. फिटनेस और हेल्थ पे भी बच्चों को बहुत ट्रेनिंग्स देते हैं, हमारे वॉलंटियर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, और उनका बोलने का एक ऐसा लहजा है कि बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं. दीपा मलिक जी है जो अभी रिसेंटली पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है. शी हैड ऑल्सो कम टू वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स टू मोटिवेट द किड्स. सिस्टर शिवानी है ब्रह्म कुमारी की, who talks about the importance of कि we water the garden outside but important to water the garden inside. कि अगर मेरी इमोशनल बैटरी 100% चार्ज है तो मेरा सब कर्म मेरे सही होंगे and I'll be able to positively make an impact. तो बहुत सारे ऐसे, I mean लॉर्ड इयन बोथम है जो इंग्लिश के क्रिकेट कैप्टन थे, लॉर्ड जेफरी आर्चर है, ऑथर्स ले लो, अमीश त्रिपाठी है, is one of our incredible authors, diplomat. So there's many people from the celebrities and the sports spaces. Suresh Raina है हमारे NCR के. And what about the government support? Like how many states have you been able to take this idea? So we've had excellent government support all over. We are very clear that we are focused on the children. हमको कोई बोलते हैं कि हम कौन सी पार्टी में, तो हम बोलते हैं बच्चा पार्टी में. जो भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं हम वहाँ पे करते हैं. तो अब्दुल कलाम was one of my main mentors. At the right age, I met him when I just come back from the US, and he came to our programs about 7 or 8 times, which is a lot for coming to one NGO. And his main thing was, I would say, sir, देश बदलना है. तो बोलता है गुज्जू भाई तू देश बदलेगा? तो I would be like, yeah, क्यों नहीं. तो I thought बोलेंगे एजुकेशन इंप्रूव करो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, करप्शन कम करो. He said, घर जाके अपनी माँ को स्माइल कराओ. तो माँ को स्माइल कराऊंगा, देश कैसे बदलेगा? He said, if your mom smiles, who smiles first? So of course मेरे पिताजी. If your parents are smiling, मैं और मेरा भाई, मेरा परिवार, सोसाइटी, सिटी, कंट्री. तो अगर माँ खुश रहेगी तो देश और दुनिया बदल सकती है. सो वी वुड हैव अबाउट 2-3 लाख बच्चे लिखते थे. मैंने मम्मी के लिए ढोकला बनाया. किसी ने बोला मैंने पिगी बैंक तोड़ के मम्मी के लिए ड्रेस लाई जो 2 साइज़ बड़ी थी, पर मम्मी ने बोला ये तो मैं रखूँगी, वापस नहीं करूँगी. किसी ने बोला मैं मम्मी के पैर दबाए 2 घंटे के लिए, मेरे भी हाथ दुख रहे थे. किसी ने बोला मम्मी के लिए कविता लिखी. तो प्यारी प्यारी स्टोरीज ऐसी आने लगी, एंड द बेस्ट स्टोरीज, एंड दैट वुड कम, कलाम सर वुड कम एंड स्पेंड टाइम विद दोस चिल्ड्रन एंड मदर्स. सो ही वाज अ बिग स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट. पिछले साल कोविंद सर को 2 बार मिलने का हमें मौका मिला. ही अप्रिशिएट द वर्क वी आर डूइंग अ लॉट. ऑफ कोर्स आई कैन से रूपाला जी है यहाँ पे जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर है, फिशरीज के मिनिस्टर है. दे आर वेरी कंपैशनेट. सिंधिया जी है, स्टील एंड एविएशन मिनिस्टर है. Have had the opportunity for my team to interact with him. Also, we have learned a lot of different projects from these people have come. So, for example, Om Birla ji जो है हमारे speaker, he said कि क्या हम जो pregnant mothers हैं और malnourished हैं, उन माताओं के लिए below 40 kg weight है, BMI less than 18 है, arm size 12, उनको fortified nutrition दे सकते हैं ताकि एक भी बच्चा मरे नहीं. तो ऐसी सोच और ऐसे आइडियाज हमको आने लगे. तो अब हम कार्य करते हैं बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न. So right from conception to बिल्कुल. So give fortified nutrition for 12 months. Once the child is born, आंगनवाड़ी में कैसा काम करना चाहिए, यूपी के गवर्नर आनंदीबेन ने हमको पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर बना के दिया है, और उसको हम उनसे बहुत सीखे कि न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में क्या करना चाहिए, आशा वर्कर्स की क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए. एंड सो वी डू वर्क ऑन वाइब्रेंट आंगनवाड़ीज. देन द स्कूल प्रोग्राम, सोलर पैनल्स, वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट क्लासरूम और सैनिटेशन के साथ साथ. फिर कॉलेजेस में हम स्कॉलरशिप भी देते हैं, स्टेम लैब्स भी करते हैं, ICT लैब्स भी करते हैं. तो इट इज़ अ मूवमेंट एंड विच बिगिंस बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न टिल ही गेट्स अ जॉब, जब तक वो आत्मनिर्भर हो जाए. Yeah, exactly. Yeah, so he can take the same ideas forward. Yeah. So a lot of people from government have supported very So nicely. we've talked about tech and education, which are the biggest pillars for any country to go forward. You talked about girl power, how you're focusing on that. Is there anything that you think still needs your focus?
Or you think that if we take care of all these, it's a sure-shot model for development? No, I think it's a learning process actually. There Learn is every day. absolutely, we need to evolve the process every single day. जैसे एप्पल के अलग अलग फोन्स आते रहते हैं. आई थिंक आज वो लोग 14-15 पे है. सो आई थिंक अ ग्रोथ माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल वर्क एज वेल. एंड yeah, we are learning about how to utilize, for example, I love the Nandan Nilekani model, where उसने जो आधार कार्ड बनाया, it is revolutionized everything. Probably the biggest thing that he will ever do. So I think we can learn from different corporate leaders as well, right? I mean, I think from someone like Deepak Parekh of HDFC. HDFC Bank does a lot of work in financial literacy in such a wonderful way. So I think utilizing the corporate's expertise to train our teachers, to further take down those things to the government school kids is very important as well. I was talking to a large multinational today, which said that we can help you create sustainable bathrooms. Right? We are working with the Gates Foundation. So environment is probably the third thing that can come in with tech and education. Yeah. Health through sanitation, preventive health, तो diarrhea and UTI कम होगा, attendance बढ़ेगी. Solar panels, water harvesting. If you can think of making carbon neutral schools, which we are working on with the Gates Foundation. And the third piece is education. I think health, environment, education में checkbox हो जाएगी, वो देश की नींव है. Then I think things can grow from there. And what's your ultimate dream to take this number where? I can give an answer, which would be a very corporate answer, which I'll say 5,000 schools पे है. We would like to be 50,000 in the next 5 years. Audit your organization in a very corporate way. Yeah, because KPMG does our audits, EY does the internal audits. Exact result on ground. Yeah. We have a proper structured board with corporate leaders. So it works in a very professional way. CEO, CTO, CFO, CMO, organized structure runs in a very appropriate manner. We're working in 25 states. So we need that to be efficient. And I think it's a very good thing to be efficient and make sure that whatever you're doing is creating impact. The social return on investment we are measuring. So it is happening by bringing in some of the best people in the world, best corporates in the world, to come and make this organization more streamlined. That's your dream? Yeah, to just keep it going. Actually, dream का अगर मैं आपको genuine answer to the real answer to going back to the Sanatan Dharma philosophy, इसके अच्छा करना है, वो सपना है. Till the last breath, till every child gets education and health in this country, आखिरी सांस तक करते जाना है. मुझे पता है बस ये कर्म करते जाना है और श्रेष्ठ कर्म और सेवा भाव से नमन, निर्मल और निमित्त भाव से करते जाना है. अभी उसमें 50,000 स्कूल्स हो जाएगी तो बहुत अच्छा, 5 लाख भी हो सकती है. Right? I might be able to softly influence the government of different states from outside with some of the best practices and create a bigger impact. I am not necessarily married to you, Unstoppable. I am married to my country. कि मेरे देश के हर एक बच्चे को कैसे सेवा मिल सके, वो इंसान का सपना होना चाहिए. मेरी कोई संस्था या कंपनी को कैसे बढ़ाऊं, वो सपना नहीं होना चाहिए. So, and you need to be flexible with what is coming in front of you. One thing which makes me very proud to be an Indian is the unicorn movement that has started in India. और हम देखते थे कि बहुत सारे बाहर के जो philanthropists थे, वो लोग बोलते थे हम 50% हमारी वेल्थ प्लेज करेंगे. ज़करबर्ग है, वॉरेन बफेट है, उन लोगों ने गिविंग प्लेज चालू किया. इंडिया से खाली 2-3 लोगों ज्वाइन हुए थे. अजीम प्रेम जी, किरण शो ने उनको ज्वाइन किया था. आई थॉट जब हमारा इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतना पॉजिटिव है, तो हमने शुरू किया यंग इंडिया फिलैंथ्रोपी प्लेज. इफ यू आर बिलो द एज ऑफ 45, 100 मिलियन इन नेटवर्थ, और अगर आप 25% अपना नेटवर्थ प्लेज करना चाहते हो देश की सेवाओं के लिए, जहाँ पे भी करना है, एनिमल्स में करना है, आपको करना है स्किलिंग के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, जो भी करना है, पर कुछ करो और पब्लिकली प्लेज करने को रेडी हो. तो ऐसे 15 लोग हैं जो इस मूवमेंट में ज्वाइन हुए. सुजीत कुमार है उड़ान के, निखिल एंड नितिन कामत है इसमें, यश भी है जो मूवी स्टार है, ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग अस इन दिस. प्रशांत प्रकाश जी है who owns about 10 different unicorns and is the, I would say, the godfather of startup investment ecosystem. Excel partner के भी जुड़े हुए हैं. Unacademy के है who has joined us. Even Razorpay के हर्ष है. कू जो ट्विटर का ही इंडिया का वर्जन है, which I think is doing amazing. उनके फाउंडर जुड़े हुए. तो ये सब यंग लोग जो have come from being,
difficult background as well. Not everybody had a golden spoon. But last 4 or 5 years, they're on the forefront of not just creating employment, but they're also going to forefront of giving back. तो जो सेवा का मीनिंग हमारे सनातन धर्म में था, वो आज के इंडिया के young wealthy भी कर रहे हैं. Thank you so much for the work you're doing, and thank you so much for having this conversation with us today. We wish you all the best in all your endeavors. Thank you, Dipti ji. बहुत अच्छा लगा. जय हिंद. Thank you.